ایک سرکاری امام مسجد کا قصہ انہی کی زبانی سناتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہیرا منڈی میں عروج تھا، زوال کی ایک کرن بھی نہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک سرکاری اہلکار کا ٹرانسفر جامعہ مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ اس اہلکار نے قریبی علاقے کے ایک MNA کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ MNA محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجے میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ، جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کے ایک آنکھ دبا کر بولا کہ قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں، تو گویا میں زمین میں 6 فٹ نیچے گر گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 18 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر، اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا، اور وہ بھلی مانس کسی کونے خدرے میں منہ دیکھ کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بدامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچ بان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے میلک کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پونچھتے ننگ دڑنگے بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ یہاں سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں، مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والے کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہو، داڑھی والے مرد تو اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا، دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچے نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ و ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی
शाम का सा धुंधलका छाया रहता था। घर ठीक करने में गुलाम शबीर ने बहुत हाथ बटाया। सफाई करने से दीवारें चूरना करने तक, थोड़ा कुरेदने पे पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शबीर घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद में ही सोता था। यूं इसको रहने की वजह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी, सो एक दिन गुलाम शबीर से पूछ ही ली, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम मस्जिद के साथ क्या माजरा गुजरा। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज़ ना पड़े। मियाँ जी अब क्या बताऊं कि वो जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा भी। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे। सोने की चिड़िया को पहले तो इन्होंने मौलाना को समझने बुझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की, बदामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। जालिमों ने इतना मारा पीटा कि मौलाना जान से गए। गुलाम शबीर ने निहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए? मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शबीर हंसने लगा, कमाल करते हैं आप भी। मियाँ जी पुलिस भला इन लोगों के चक्करों में कहाँ पड़ती है, बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद इस लड़की के आशिकों में शामिल थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ इस जहन्नम में फंस गए। मैं ये सब सुनकर सख्त परेशान हुआ। आप क्यों फिक्र करते हैं मियाँ जी, बस चुप करके नमाज पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, इनको कुरान पढ़ा दें। बाकी बस अपने काम से काम रखेंगे तो कोई तंग नहीं करता यहाँ। बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शबीर ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। इन्हीं शुरू के अयाम में एक वाक़या हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक की थी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाज़ा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेकर अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगा, बशीरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ न बोला और ना ही मुझे कोई शक गुजरा। सोचा होगी कोई अल्लाह की बंदी, और फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही चलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी यही मामूल रहा तो मैंने सोचा कि ये कौन है जो बगैर कोई एहसान जिताए एहसान किए जा रही है। ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही था जब गुलाम शबीर को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर, ये बशीरा कहाँ रहती है? मैं चाहता हूँ मेरी घर वाली जाकर उसका शुक्रिया अदा कराएं। गुलाम शबीर के तो औसान खता हो गए। ये सुनकर, मियाँ जी बीबी नहीं जा सकती वहाँ। मैंने हैरानी से मजीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शबीर ने पहाड़ ही तोड़ दिया मेरे सर पे। मियाँ जी इसका पूरा नाम तो पता नहीं क्या है, मगर सब लोग इसको बशीरा कंजरी के नाम से जानते हैं। पेशा करती है, जी पेशा करती है, यानी तवाइफ है, और तुम हमें इसके हाथ का खिलाते रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शबीर कुछ शर्मसार हुआ। मेरा गुस्सा देखकर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं, इनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा चलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरा गुस्सा और तेज हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शबीर कुछ न बोला, मगर उस दिन के बाद से बशीरा तवाइफ के घर से खाना कभी ना आया। जिस मस्जिद में मैं इमाम था, अजीब बात यह थी कि इसका कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन मैंने गुलाम शबीर से पूछा कि मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का? वो हंसकर बोला, मियाँ जी अल्लाह के घर का क्या नाम रखना, फिर भी कोई तो नाम होगा, सब मस्जिदों का होता है। मैं कुछ खुशियाना होके बोला, बस मियाँ जी बहुत नाम रखे, जिस फिरके का मौलवी आता है पिछला नाम तब्दील करके नया रख देता है, आप ही कोई अच्छा सा रख दें। वो सर खुजाता हुआ बोला, मैं सोच में पड़ गया, गुनाहों की इस बस्ती में इस वाहिद मस्जिद का क्या नाम रखा जाए? मस्जिद का, हाँ मोती मस्जिद ठीक रहेगा। गुनाहों के कीचड़ में चमकता पाक साफ मोती। दिल ही दिल में मैंने मस्जिद के नाम का फैसला किया और अपनी पसंद को दाद देता अंदर की जानब बढ़ गया, जहाँ बीवी खाना लगाए मेरी मुंतजर थी। अब बात हो जाए कुरान पढ़ने वाले बच्चों की। तादाद में 11-12 थे और सब के सब लड़के, मिली जुली उम्रों के 5 से 11-12 साल की उम्र के। थोड़े शरारती ज़रूर थे मगर अच्छे बच्चे थे। नहा धो के और साफ सुथरे कपड़े पहन के आते थे। 2 घंटे सिपारा पढ़ते थे और फिर बाहर गली में खेलने निकल जाते। कौन थे
किस की औलाद थे न मैंने कभी पूछा न किसी ने बताया। लेकिन फिर एक दिन गजब हो गया। कुरान पढ़ने वाले बच्चों में एक बच्चा शौकत नाम का था। यूं तो इसमें कोई खास बात ना थी, लेकिन बस थोड़ा ज्यादा शरारती था। तिलावत में दिल नहीं लगता था, बस आगे पीछे हिलता रहता और खेलने के इंतजार में लगा रहता। मैं भी दरगुजर से काम लेता कि चलो बच्चा है, लेकिन एक दिन जबत का दामन मेरे हाथ से छूट गया। उस दिन सुबह ही से मेरे सर में एक अजीब दर्द था। गुलाम शबीर से मालिश कराई, पैनाडोल की 2 गोलियां मंगवा कर खाई, मगर दर्द जोर और बैल की मानिद सर में चिंगाड़ता रहा। दर्द के बावजूद और गुलाम शबीर की बहुत मना करने पर भी मैंने बच्चों का नागा नहीं किया। शौकत भी इस दिन मामूल से कुछ ज्यादा ही शरारतें कर रहा था। कभी इसको छेड़, कभी दूसरे को। जब इसकी हरकतें हद से बढ़ गईं तो यकायक मेरे दिमाग पर गुस्से का भूत सवार हो गया और मैंने पास रखी लकड़ी की रेहल उठाकर शौकत के दे मारी। मैंने निशाना तो कमर का लिया था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि रेहल बच्चे की पेशानी पर जा लगी। खून बहता देखकर मुझे मेरे सर का दर्द भूल गया और मैंने घबराकर गुलाम शबीर को आवाज दी। वो गरीब भागता हुआ आया और बच्चे को उठा के पास वाले डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। खुदा का शुक्र हुआ कि चोट गहरी नहीं लगी थी। मरहम पट्टी से काम चल गया और टांके ना लगे। खैर, बाकी बच्चों को फारग करके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि चादर में लिपटी एक औरत ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैंने देखा कि वो औरत दहलीज पर खड़ी मस्जिद के दरवाजे से लिपटी रो रही थी। तकरीबन 35-40 साल उम्र होगी। मामूली शक्लो सूरत, सांवला रंग और चेहरे पे पुरानी चीचक के गहरे दाग, आंसू में डूबी आंखें और गालों पर बहता काला सुरमा। जेवर के नाम पे कानों में लटकती सोने की हल्की सी बालियां और नाक में चमकता सस्ता सुर्ख नग का लौंग। चादर भी सस्ती मगर साफ सुथरी और पाँव में हवाई चप्पल। क्या बात है बीबी, कौन हो तुम? मैंने हैरानगी से इससे पूछा। मैं बशीरा हूँ मौलवी साहब, इसने चादर के पल्लू से नाक पोंछते हुए कहा। बशीरा कंजरी, मेरे तो गोया पांव तले जमीन ही निकल गई। मैंने इधर उधर गुलाम शबीर की तलाश में नजर दौड़ाई, मगर वो तो शौकत की मरहम पट्टी करा के और इसको इसके घर छोड़ने के बहाने न जाने कहाँ गायब था। जी बशीरा कंजरी, इसने नजरें झुकाए अपने नाम का इकरार किया। मुझे कुछ देर के लिए अपने मुंह से निकलने वाले इसके गाली जैसी उर्फियत पे शर्मिंदगी हुई, मगर फिर ख्याल आया कि वो तवाइफ थी और अपनी बुरी शोहरत की जिम्मेदार। शर्मिंदगी इसको होनी चाहिए थी, मुझे नहीं। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी मोती जैसी मस्जिद में इस तवाइफ का नापाक वजूद किसी गलाजत से कम नहीं था। बाहर निकल के खड़ी हो, मस्जिद को गंदा न कर बीबी। मैंने नफरत से बाहर गली की जानब इशारा किया। इसने कुछ इस हैरानगी से आंख उठा के मेरी तरफ देखा कि जैसे इसे मुझसे इस रवैये की उम्मीद ना हो। डबडबाई आंखों में एक लम्हे के लिए किसी अनकही फरियाद की लौ भड़की, लेकिन फिर कुछ सोचकर इसने आंसुओं के पानी में एहतजाज के इरादे को गर्क किया और बगैर कोई और बात किए चली गई। मैंने भी ना रोका कि पता नहीं किस इरादे से आई थी। इतनी देर में गुलाम शबीर भी पहुंच गया। कौन थी? मियाँ जी क्या चाहती थी? गालबन इसने औरत को तो देखा था, मगर दूर से शक्ल नहीं पहचान पाया। बशीरा कंजरी थी। पता नहीं क्यों आई थी, मगर मैंने भी वो डांट पिलाई कि आइंदा इस बागे जगह का रुख नहीं करेगी। मैंने दाद तलब नजरों से गुलाम शबीर की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर सताइश की जगह अफसोस ने डेरे डाल रखे थे। वो बेचारी दुखों की मारी अपने बच्चे का गिला करने आई थी। मियाँ जी, शौकत की माँ है, बच्चे की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकी और आपने इस गरीब को डांट दिया। गुलाम शबीर ने बशीरा की वकालत करते हुए कहा। तो शौकत बशीरा का बेटा है, ऐसी हरकत करेगा तो सजा तो मिलेगी। जैसी माँ वैसा बेटा। मैंने अपनी शर्मिंदगी को बेहुदगी से छुपाने की कोशिश की। एक लम्हे को ख्याल भी आया कि बच्चा तो मासूम है और फिर मैंने ज्यादती भी की थी, मगर फिर अपने उस्ताद होने का ख्याल आया तो सोचा कि बच्चे की भलाई के लिए ही तो मारा था। क्या हुआ? एक तवाइफ को क्या हक हासिल है कि मस्जिद के इमाम से शिकायत कर सके? कितने बच्चे हैं बशीरा के? मैंने बात का रुख बदलने की कोशिश की। मस्जिद में पढ़ने वाले सब बच्चे बशीरा के हैं मियाँ जी। इसके अलावा एक गोद का बच्चा भी है। बस इस मोहल्ले में सिर्फ बशीरा अपने बच्चों को मस्जिद भेजती है, बाकी सब लोगों के बच्चे तो आवारा फिरते हैं। गुलाम शबीर की आवाज में फिर बशीरा की वकालत गूंज रही थी। मैंने भिना कर जवाब देने का इरादा किया ही था कि कोतवाल साहब की गाड़ी सामने आकर रुकी। खुद तो पता नहीं कैसा आदमी था, मगर बीवी बहुत नेक थी। हर दूसरे तीसरे रोज खत्म के नाम पर कुछ न कुछ मीठा भिजवा देती थी। उस दिन भी कोतवाल का अर्दली जलेबियां देने आया था।
गर्मा गर्म जलेबियों की इश्तहा अंगेज महक ने मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया और बशीरा कंजरी की बात आई गई हो गई। शौकत को मार पड़ने के कुछ दिनों बाद ईशा पढ़ा के मैं गुलाम शबीर से एक शरई मामले पर बहस में उलझ गया तो घर जाते वक्त काफ़ी देर हो गई। मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बालकोनियों पर झिलमिलाते पर्दे लहरा रहे थे और कोठों से हारमोनियम के सुर और तबलों की थाप की आवाज हर सू गूंज रही थी। पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र बशीरा कंजरी के घर पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मार मार कर गप्पे लगा रही थी। आज तो इसका रूप ही दूसरा था। वो गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पाँव में सुर्ख, नंगे सर पे ऊंचा जोड़ा, जोड़े में पिरोए मोतियों के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और मस्कारे की ओट से झांकती नंगी दावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर वो बशीरा जो नाच गाने, मुजरे और फाशी, तवाइफ और रात गुजारने वाली कंजरी का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, औरत गरीब है और दुनिया बड़ी जालिम। इसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। ये बताओ मियाँ, जब इसके गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने मानी खेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो इसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सहन में कमरा अलग रखा है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं ख़त्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख बशीरा की जानब नहीं था। इसके बाद बशीरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों मैं अपने और जोजा के लिए हज बैतुल्लाह की गर्ज से कागजात बनवा रहा था। इस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआएं करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की ज़ियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा हो तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दीली कर दें। जोजा का एक भांजा उन्हीं दिनों वजारत मजहबी अमूर में कलरक। इसकी वसातत से दरख्वास्त की कबूली की कामल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था आपसे, इजाज़त दें तो अर्ज करूं? इसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए इसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वक्फियत है, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करा दें। इसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानब बढ़ाए। देखो मियाँ गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रहा हूँ, और फिर तुम्हारे पास हज के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ बरहमी से पूछा। नहीं नहीं मियाँ जी, आप गलत समझे, ये मेरी दरख्वास्त नहीं है, बशीरा की है। इसने सहम कर कहा। क्या मियाँ होश में तो हो? बशीरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पेशे की रकम से? तौबा तौबा, मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई ये वाहियात बात सुनकर। मियाँ जी, तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, वो जिसको बुलाना चाहे बुला ले, इसके लिए सब एक बराबर। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बड़ी गहरी बात। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले। वाह मियाँ वाह, तो फिर मैं दरख्वास्त क्यों जमा कराऊं? बशीरा से कहो सीधा अल्लाह ताला को ही मिल ले। मैंने गुस्से से कहा और अंदर कमरे में चला गया। जोजा का भांजा बरखुरदार निकला और अल्लाह के फजलो करम से मेरी और मेरी जोजा की दरख्वास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो इसी भली लोग के जहेज के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार के एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नजर भर के देखा। फराइज पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। बहुत रश था, हजारों लाखों लोग, एक ठाठे मारता सफेद रंग का समुंदर। गर्मी भी बहुत थी। मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। जोजा बेचारी की हालत भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गजब कुछ ये हुआ कि मेरे हाथ से इस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक रेला मुझे रगेजता हुआ पता नहीं कहां से कहां ले गया। अजीब हालात थे, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं था, हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर पैर रपट ही गया। मैं नीचे क्या गिरा, एक अजाब नाज़िल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद की ही थीं कि अल्लाह के बंदे ने मेरा दायां हाथ पकड़ के खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया।
मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए इसकी तरफ निगाह की। मानो एक लम्हे के लिए तो बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखता हूँ कि मेरा हाथ मजबूती से थामे बशीरा कंजरी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये नापाक औरत यहाँ कैसे आ गई? इसकी हज की दरख्वास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ साहब, एक आहनी गिरफ्त थी, मैं नहीं छुड़ा सका। वो मुझे अपने पीछे खींचती हुई एक तरफ ले गई। उस तरफ कुछ औरतें इकट्ठी थीं। अचानक मेरी नज़र जोजा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बेताब निगाहों से मजमा टटोल रही थी। हमारी नजरें मिली तो सब कुछ क्लिफ्त भूल गई। मैं दौड़कर इस तक पहुंचा और आंसू पूछे, कहाँ चले गए थे आप? कुछ हो जाता तो। परेशानी से अल्फाज इसके गले में अटक रहे थे। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूं। जाने कौन सी नेकी काम आ गई। मैं तो पांव तले रौंदा जा चुका था अगर बशीरा नहीं बचाती। मैंने इसको तसल्ली देते हुए कहा कि बशीरा हमारी पड़ोसन। बशीरा वो यहाँ कहाँ आ गई? आपने किसी और को देखा होगा। इसने हैरानगी से कहा, अरे नहीं, बशीरा ही थी। मैंने इधर उधर बशीरा की तलाश में नजर दौड़ाई, मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में भी इसको बहुत ढूंढा, मगर इतने जमे गफीर में कहाँ कोई मिलता है। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों के हारों समेत इस्तकबाल को आया हुआ था। बहुत मुबारकबाजी, बहुत मुबारक मियाँ जी, बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहब कहूँगा। इसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारकबाद दी तो मेरी गर्दन हाजी साहब का लक़ब सुनकर अकड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए इसके कंधे पर थपकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठे मैंने मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफ्त की तो बशीरा का ख्याल आ गया। मियाँ गुलाम शबीर, बशीरा की सुनाओ। मेरा इशारा उसकी हज की दरख्वास्त के बारे में था। इस बेचारी की क्या सुनाऊं मियाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? इसने हैरानगी से मेरी जानब देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्का शरीफ में। मैंने इसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई थी? मजाक ना करें मियाँ जी, बशीरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। इसने गोया मेरे सर पर बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने अचंभे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। उस रात कोई गाहक आया और पैसों के पीछे कत्ल कर दिया गरीब को। हमें तो सुबह को पता चला। जब उसके बच्चों ने उसकी लाश देखी, शोर मचाया तो सब इकट्ठे हुए। पुलिस वाले भी पहुंच गए और इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मैं मुर्दा खाने से मैयत लेके आया हूँ। आज सुबह ही तदफीन की इसकी। गुलाम शबीर की आवाज़ आंसुओं में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी के तवाइफों के कातिलों को ढूंढें। इस बेचारी की तो नमाज जनाजा भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। इसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा, और इसके बच्चे, इनका क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूछते हुए दरियाफ्त किया। कोई लड़का पैदा होता है तो ज्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। वो सब ऐसे ही बच्चे थे। बशीरा सब जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा होने वाला है। बस लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले आती। कहने को तो तवायफ थी, मगर मियाँ जी मैं गवाह हूँ, गरीब जितना भी कमाती बच्चों पे खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत अलग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे, वो भी इसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शबीर, जब मैंने उसकी दरख्वास्त जमा कराने से इनकार किया तो इसने क्या कहा? मुझ पे हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी क्या कहती बेचारी, आंखों में आंसू आ गए, आसमान की जानब हाथ उठाए और कहने लगी, बस तू ही इस कंजरी को बुलाए तो बुला ले, मुझ पर तो पूछो घड़ों पानी पड़ गया। तासफ की एक आंधी चल रही थी, हवा के दोष मेरी खताएं उड़ा रही थी, गुनाहों की मट्टी चल रही थी और मेरी आंखें उंधियाई जा रही थी। आप क्यों रोते हैं मियाँ जी? आप तो नापाक कहते थे इसको। गुलाम शबीर ने हैरानगी से मेरी आंसू से तर दाढ़ी देखते हुए कहा, क्या कहूँ गुलाम शबीर के क्यों रोता हूँ? वो नापाक नहीं थी, नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते फिरते हैं। बशीरा तो अल्लाह की बंदी थी। अल्लाह ने अपने घर बुलाया। मेरी निदामत भरी हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और गुलाम शबीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली देता रहा। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि बशीरा के दरवाजे पे नजर पड़ी। एक बड़ा हजूम इकट्ठा था। क्या बात है गुलाम शबीर, लोग अब क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी मेरे ख्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को लेके आए हैं और वही लोग बच्चों को लेके जाएंगे और गरीबों की कोई देखभाल करने वाला तो है नहीं। गुलाम शबीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने जोजा का हाथ पकड़ा
اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بشیرہ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ بشیرہ کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام بشیرہ نور مسجد ہے۔